sorry, theories of leadership. So there we have discussed three theories. ये चौथी theory इसके बाद कोई और section आएगा. So as I said, like the chapter is divided into three sections. पहले the first section is all about what is leadership, like how to define leadership, like leadership बोलते किसके हैं, the theories of leadership के what actually is a good leader या ideal leader, ठीक है. Second जो portion होगा, right, that's gonna be about the different type of leadership that you have, right? How many types of different leaders there are, उनके क्या क्या styles हैं, what are different, and like क्या क्या उनके बारे में advantages, disadvantages, and like the last is followers, okay, the type of followers that you have, and like how to improve relationship with your followers as a leader. First section, three levels of leadership is the last three that we're gonna get. Uh, तो ये स्कूलर की theory है, right? And you get the three P's of leadership. So the three P's of leadership, right? Personal, private, and public. स्कूलर कहते हैं कि right, एक लीडर जो है पर्सनल लीडरशिप भी डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्राइवेट भी, इन पब्लिक. So what is personal, private, public leadership? Schuler says that the personal leadership, वो leadership होती है when the leader is alone with himself, and what he does in his personal time is personal leadership. For example, like how to define personal leadership is that is the leader being productive in his own free time? Is he reading up on material, right? Is he investing in himself? Okay, is he like getting better? Is he like upgrading his knowledge, etc.? So whatever he does in his personal time is his personal leadership. अगर बुरी चीज करेगा तो bad personal leadership, अच्छी चीज करेगा तो अच्छी personal leadership होगी. Then you come on to private leadership. Private leadership is that situation where a leader is going to meet with people, but only one person. So it's like one-to-one setting. Personal leadership के अंदर there is no one else except you. Private leadership के अंदर there is you and the other person, right? Public leadership के अंदर it's you versus more than one person. So it's going to be two, it could be three, whatever. So it's like group gathering, a meeting, वगैरह. So private and public have to do with other people, the leaders' interaction with other people, how they are. And personal leadership has to do with the क्या कहते हैं हम, the private sorry the alone setting, जब leader अपने साथ अकेला होता है. So the idea is that whatever a leader does personally, right, ये बाकी दो एरिया में इसका impact नजर आएगा. So if a leader is bad personally, मतलब let's suppose he gets drunk, so public leadership and private leadership भी उसकी influence होगी. So the only way for a leader to get better at private leadership, public leadership, is to get better at personal leadership. वहाँ खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा. So so that's the theory that Schooler gives. So he gives some few pointers कि भाई बंदा personal leadership के अंदर क्या क्या करे, so the other aspects of leadership get positively impacted as well. So yeah, so in your CIE summary क्या बताना है कि तुम्हें बताना है स्कूलर के three P's of leadership होते हैं, तीनों के नाम and brief description, public, private and personal. That's what they require. ठीक है, जैसे for example यहाँ पे sorry क्या, again personal leadership can get under leader investing his skills, taking increasing his skills, time management, whatever, ठीक है ना. uh, Thinking of what to do, how to get better. Private leadership is like one-to-one setting. Public leadership is like group setting. All right. So that's it. What that's what Schooler said. So ये एक सवाल आता है, ठीक है ना, discuss the application of Schooler's three P's of leadership. So what you can say is that is applicable in the sense that अगर leaders को अच्छा बनाना होगा, so we can use this theory to make leaders better. And the way we do it is we get them to do good things in their personal time. ताकि पर्सनल लीडरशिप बेहतर होगी तो दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप बेहतर होंगे. सो इट इज एप्लीकेबल इन दैट सेंस कि अगर लीडर को बेहतर करना है तो यू नीड टू ट्रेन देम टू गेट बेटर इन देयर पर्सनल लीडरशिप. नंबर थ्री,
What you can do is like it doesn't signify, it doesn't tell you what type of person is needed at all three levels. मतलब ये बताते हैं कि भाई तुम्हें तीनों लेवल में कामयाब होने के लिए that person लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा. But it could be a possibility that तीनों levels के लिए अलग अलग skills भी चाहिए होंगे. So schooler doesn't dive into in depth कि हर level के अंदर क्या skills चाहिए होंगे. It could be a possibility कि बंदा जो है तीनों levels of leadership शायद एक इंसान की बस की बात नहीं. Other people may be required for other aspects of leadership. But schooler does not highlight that. तो स्कूलर डजंट हेल्प कि हर लेवल के लिए क्या क्या नेसेसरी क्वालिटीज चाहिए होती है. सिर्फ पर्सनल के लिए बताते हैं इन दैट रिगार्ड्स इज लेस एप्लीकेबल क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल. सो इट इज एप्लीकेबल एट द सेम टाइम बट इट्स नॉट एप्लीकेबल एट द सेम टाइम. नंबर थ्री. ठीक है. It could be culture bias in the sense that different cultures may prioritize different levels of leadership among the other क्योंकि स्कूलर के लिए तो ultimately public leadership तक पहुंचना है, right? But क्या पता कि different cultures के अंदर public leadership may not be given preference or private leadership may not be given preference. Maybe हर culture के अंदर right personal leadership तक बात रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी. मतलब being responsible for yourself या being accountable for your actions वाली बात वाले cultures होते हैं guys. Like people are responsible for their actions, so like they might not even need private and public leadership. They might not even need other people to come and tell them what to do. They might be doing fine on their own. So if everyone demonstrated personal leadership, you would not need private and public leadership. So ये नहीं बताते कि उस situation में क्या होगा भारत. तो anyways, if you were to evaluate Schooler's theory, it is applicable, ठीक है ना. Is a culture bias, could be culture bias, ठीक है ना, क्योंकि Western culture में निकला है, ये किसी और culture में जनरलाइज हो या नहीं हो, that differs क्योंकि every different culture has different expectation या levels of leadership, right? Uh, so it could be culture bias. Is it deterministic? It is deterministic in the sense that आपका पब्लिक लीडरशिप खराब इसलिए क्योंकि आपका पर्सनल लीडरशिप खराब है. So your public leadership and your private leadership is determined by your personal leadership. So you don't have free will to do good in public but bad in personal. अगर पर्सनल में बुरा है तो 100% पब्लिक बुरा होगा. According to Schooler, you don't have free choice in that. तो अगर तुम्हें पब्लिक लीडरशिप अच्छा करना है तो तुम्हें पर्सनल बदलना होगा. So in that sense, it's deterministic. It's subjective in the sense that it's not scientific. It's just a theory of leadership. क्या पता कि तीन से और levels होंगे. We don't know. So it is subjective in that sense. Also, this theory also tells us why some leaders do good, why some leaders are not doing good. So this theory tells us how every single person can be different in their personal leadership, which might tell us why every single leader is different in public and private setups. So yes, it's individual debate की तरफ जा सकता है कि individually a person what they do in their personal leadership may be different and hence may be different in other aspects of leadership. So यहाँ पे individual differences का point आ सकता है. यहाँ तक कोई सवाल? All right. So there's this question, right? To what extent would they, demonstrate levels of leadership in a cloth factory? So, like, how would you do this question, वैसे? स्कूलर की थ्योरी को भी बेस्ड है कि भाई तुम्हें फैक्ट्री के अंदर जाना है, मैनेजर के पास है जो कपड़ों की फैक्ट्री के अंदर काम करता है, और उसके बाद थ्री लेवल्स ऑफ लीडरशिप स्टडी करना है कि डेमोन्स्ट्रेट किस तरह करते हो. हाउ वुड यू डू इट? Any ideas on how to run this question?
Do you remember the design experiments वाला point जो 10 point थे whenever you design experiment? Do you remember that? Like IV, DV, sample, 70 technique ये सब, like controls, ethics वगैरह ये सारी चीजें. So ये सब यहाँ पे apply होंगे, right? So like you're supposed to design experiment in that regard. Okay, वो सब दिमाग में रखते, you're supposed to design experiment. All right, so who's gonna be your sample? Sampling technique क्या होगा? Where are you gonna do this experiment? Setting क्या होगा, right? Talk in that regard. So that could be a good starting point before you start. So like who's gonna be your sample? Sampling technique क्या लगाओगे? Setting क्या लगाओगे? Random sample. All right, let's look at the question. कितने लोग चाहिए वैसे? How many people do you need for this learn type? कितने number of people would you need? Let's look at the question further. One. Yep. So that's one person. ठीक है ना? Who is a manager of the store? ठीक है. अच्छा. Now commonly, well, ऐसी बता दो, right? No, ऐसी बता दो. Would you देखो रैंडम सैम्पलिंग के लिए ना तुम्हें एक मैनेजर निकालने के लिए तुम्हें दुनिया के सारे मैनेजर्स के लिस्ट के नाम चाहिए होंगे, राइट? रैंडम सैम्पलिंग में यही होता है. और उसमें से एक चूज करोगी तो फिर तो पूरा समझाना पड़ेगा कि तुम दुनिया के सारे मैनेजर के नाम किस तरह जमा करोगी. तो रैंडम सैम्पलिंग समझाना किस तरह करते हो बहुत मुश्किल है. सो डोंट गो फॉर रैंडम सैम्पलिंग. सबसे आसान जो होता है अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग है कि भाई मैं मतलब घर के रिसर्च फैसिलिटी करिए एक मैनेजर का फैक्ट्री है, मैं वहां जा रही हूँ. सो द क्लोजेस्ट पॉसिबल factory of clothes within the city was chosen to be the closest factory का जो manager था was chosen to be a sample and hence is opportunity sampling. ठीक है. ये तुम एक्सपेरिमेंट लैब में जाके करोगी या उसी की फैक्ट्री के अंदर करोगी या कहाँ पे करोगी? वेयर वुड यू डू एक्सपेरिमेंट? फैक्ट्री में. सो कौन सी सेटिंग होगी? Is it gonna be a field lab या naturalistic? फील्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो इट मीन्स कि तुम वहां पे करोगे. ठीक है. जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट तुम्हारा मैनेजर जो है शू फैक्ट्री का बंदा मैनेजर, सैंपल एक बंदा है. ठीक है ना? So sample is one person, ठीक है ना, who is a female
and who is a manager of shoe factory, sorry, cloth factory. All right. तो इसमें आईबीडी भी नहीं होगा क्योंकि you're not gonna compare. ठीक है, you're not comparing anything, you basically find out कि भाई ये बंदी जो है levels of leadership किस तरह demonstrate करती है. तो there's no IB and DV यहाँ पे. All you're doing is conducting an exploratory research. ढूंढने जाओगे, मालूम करने जा रही हो. तो अच्छा, तो प्राइवेट पर्सनल एंड पब्लिक लेवल ऑफ लीडरशिप देखना है कि ये बंदी हर लेवल ऑफ लीडरशिप किस तरह करती है. तो हाउ वुड यू डू द पब्लिक लीडरशिप के लिए क्या करोगे? जब वी यूज आईवी एंड डीवी व्हेन वी ओनली कंपेयर, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा. Alright, so like how would you gauge her public leadership, personal leadership, private leadership? किस तरह चेक करेंगे इस मैनेजर का? चलो मेथोडोलॉजी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन है. पब्लिक में क्या ऑब्जर्व करेंगे, प्राइवेट में क्या ऑब्जर्व करेंगे, पर्सनल में क्या ऑब्जर्व करेंगे? कुछ भी स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक क्या ऑब्जर्व करेंगे? एज इन फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में क्या? her communication. सही है, how she communicates with people, हम उसका communication judge करेंगे, ठीक है ना? So how she communicates with them. Public में, sorry, private में, और private में, public में फिर क्या? And what about personal? Her communication in person, communication with who, क्योंकि अकेली होगी वो, तो अकेले में कैसे communication judge करेंगे? टाइम मैनेजमेंट इन प्राइवेट, ठीक है. और टाइम मैनेजमेंट इन प्राइवेट, ठीक है. टाइम मैनेजमेंट का ऑब्जर्व करोगी, कम्युनिकेशन इस्तेमाल करोगी, स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगी इसमें उसमें. और अब थोड़ा यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट को हम किस तरह मैनेज कर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल वी सी ड्यूरिंग टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के दौरान, आर वी गोना लुक एट हर चॉइस ऑफ वर्ड्स, एंड स्ट्रैटेजी के अंदर व्हाट स्पेसिफिकली आर वी लुकिंग एट. तो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा. सो बेसिकली आई वुड से कि पब्लिक लीडरशिप के अंदर we're gonna look at how she motivates the employee. Basically, when she talks to people, right? Are people, yep. So employee communicate करने के बाद, do the employee nod with her? मतलब employees को observe करेंगे, are they nodding or not? क्योंकि इसका feedback जो employees की तरफ से आएगा, right? So we're gonna observe both her and our employee in the public के अंदर, whether the employees agree or not, या give positive gesture to her public setting के speech. Private के अंदर भी we may look at the same thing, whether the person she is talking to does the same thing. Time management in personal के अंदर we might look at how many tasks she gets completed in a specific time frame. अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट, ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ओवर्ट, कोवर्ट, ये सब पता है?
और तो स्पेसिफिकली तुम बता सकते हो कि ऑब्जर्वेशन किस तरीके का होगा, ये सब टर्मिनोलॉजी मिला मिला के व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वुड बी। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड हो गया, और स्ट्रक्चर के अलावा। ठीक है, तो शी कुड सी अस व्हाइल वी ऑब्जर्व हर, तो कौन सा वाला कहेंगे, ओवर्ट कहेंगे, कोवर्ट कहेंगे? और देखो, ओवर्ट का ये मतलब होता है कि बंदे को पता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। कोवर्ट का ये मतलब होता है हम चुपके से रखे, उसको पता नहीं होता कि वो ऑब्जर्व हो रही है। सो विच वर्ड आर वी गोना यूज? Which one do you think are we gonna use? हाँ, एक वर्ड कोवर्ट, ठीक है, इसमें ओवर कोवर्ट चूज करना होगा। एक होता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, तुम्हें बता दिया। एक होता है उसके बाद हमें बताना पड़ा पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। आर यू ऑब्जर्विंग एज ए पार्टिसिपेंट इन द एक्सपेरिमेंट, या हम खुद अलग है, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, हम एज अ रिसर्चर ही देख रहे होंगे? तो ये बताना होगा कि आर यू पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च और नॉट द पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च। उसके अलावा होता है कंट्रोल्ड एंड नेचुरलिस्टिक, मतलब तुम क्या एक कंट्रोल माहौल में कर रही हो, नेचुरलिस्टिक माहौल में कर रही हो। ठीक है, अच्छा, व्हाई डू से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लाइक आर वी, अच्छा, आर वी गोना ऑब्जर्व हर एज अ पार्टिसिपेंट, ये क्या सीन है? ठीक है, तो मतलब ये बताओ कि सो मे बी हैव टू बी अ पार्टिसिपेंट। अगर अच्छा मैं तुमसे, अच्छा पूछा, अगर पार्टिसिपेंट बनेंगे तो पार्टिसिपेंट बनते हुए क्या उसको पता चलेगा हम उसको ऑब्जर्व करें या नहीं, कि वो पकाता पता चला कि रिसर्च की ऑब्जर्व हो रही कि नहीं? क्या इसलिए पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, क्या सीन है? कि उसको पता ना चले? अच्छा, तो उसको पता होगा कि वो ऑब्जर्व हो रही है। देखो, इसमें पार्टिसिपेंट इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि इस पूरे रिसर्च में पार्टिसिपेंट एक ही है, एंड दैट इज द मैनेजर। उसके अलावा और कोई पार्टिसिपेंट हो नहीं सकता। तो अगर हम उसके सामने खड़े होकर भी ऑब्जर्व करें, राइट, तो हम पार्टिसिपेंट नहीं बन सकते आप। सो तुम्हारा जो पूरा ऑब्जर्वेशन होगा दैट्स गोना बी स्ट्रक्चर्ड, नेचुरलिस्टिक, नॉन पार्टिसिपेंट एंड ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे चारों के चारों क्राइटेरिया मीट करने होंगे। तो तुम्हारा राइट, सो जिस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, मैंने बोला था कि ऑब्जर्वेशन कर होंगे उस एम्प्लॉयज की इन दैट पब्लिक एंड प्राइवेट सेटिंग, कितने एम्प्लॉयज इसके साथ अग्रीमेंट में या पॉजिटिव साइंस देते हैं, सच एज नॉडिंग द हेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा जो क्राइटेरिया था, मैंने बोला कितने एम्प्लॉय, कितने, हाउ मेनी, तो क्वांटिटेटिव डेटा आएगा। उसके साथ साथ टाइम मैनेज करने,
टाइम मैनेजमेंट के अंदर इन वन टाइम कितने टास्क हम अकाम्प्लिश, कितने, हाउ मेनी, राइट। तो ये लिखना लाजमी, क्यों, दिस विल गेट अस द क्वांटिटेटिव डेटा, वरना फिर क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है, राइट। आने में मसला नहीं, बट इट जस्ट गोस टू शो कि तुम क्वांटिटेटिव डेटा किस तरह निकाल सकते हो व्हेन यू से कितना या कितने, हाउ मच या हाउ मेनी, भारत। सो दैट्स इट। उसमें कोई कंट्रोल्स के अंदर तुम क्या रख सकते हो क्योंकि एक ही ऑब्जर्वर, लाइक डू यू वांट टू ऐड वन मोर ऑब्जर्वर या यू वांट टू स्टे विद वन ऑब्जर्वर, क्या सीन है? टू ऑब्जर्वर्स, ठीक है। तो तुम्हारा कंट्रोल्स का भी पोर्शन पोर्शन के अंदर आएगा, यू वुड से कि एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल देयर आर गोना बी टू ऑब्जर्वर्स इन द स्टडी so that they can match results. इससे बेहतर phrase होता है so that inter-observer reliability can be calculated. So that's how you write it proper, inter-observer reliability. ठीक है. Ethical concerns में are there any ethical points that you're gonna do you meet in while conducting research of the manager? As in like keep her name confidential, data confidential, privacy, कि इसको भाई observe कर लोगे तो मतलब privacy invade now, like you observe her when like she is okay to be observed, फौरन घुस के observe नहीं करोगी। उसके अलावा what you can do is like right to withdraw if she wants to say कि भाई मुझे research नहीं करना, she can stop the research, ठीक है। So you're gonna make sure कि you cover up all the वो वाले points, क्या कहते हैं, ethical points। यहाँ पे data analysis नहीं होगा क्योंकि एक ही बंदे का data जो निकलता है वो नहीं निकाल सकते, यहाँ पे कोई statistical measures नहीं मार सकते क्योंकि एक ही बंदे का data निकलता है। तो एक बंदे के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, that's gonna be entire complete experiment, that's it। And research methodology is the वो the observation, that's gonna be the methodology, and when you write कि तुम क्या क्या observe कर लोगी, like for example public में ये, private में ये, and like personal में ये, तो वो भी methodology के अंदर आएगा। So methodology is basically how you're gonna collect the data, तो वो आ चुका होगा when you write everything about observation। Alright, so that's one question, ठीक है। Again, psychological methodological evidence, what you're supposed to do, कि ये part A है इसका, right, इसका part B है। So in the part B again they ask a psychological methodological evidence क्या है। तो psychological evidence में तुम बताओगे कि whatever your experiment is based upon, जो तुमने यहाँ पे किया, it is based upon स्कूलर की 3P of leadership की theory, the 3 levels of leadership की theory। तो तुम्हें यहाँ पे स्कूलर की summary देनी होगी कि वो theory क्या थी। Methodological evidence में again two features of your research, ठीक है। उसको मुझे जस्टिफाई करना है कि तुमने अपॉर्चुनिटी सामने क्यों किया, या ऑब्जर्वर ये वाला ऑब्जर्वेशन क्यों चूज किया, या ये वाला डेटा क्यों क्यों चूज किया, क्वांटिटेटिव डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। सो दैट्स मेथोडोलॉजिकल एविडेंस, दो फीचर्स की जस्टिफिकेशन देनी होती है, सारे के सारे के नहीं। तो जब तुम ये कर लो तुम्हारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और तो अगेन एज आई सेड उसके अंदर के एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बच्चों को समझा दे तो सेक्शन ये क्वेश्चन 4 पेपर 4 सेक्शन सी का सवाल है जहाँ पे तुम्हें डिबेट लिखना होता है। सो द वे दे आस्क, सो द वे द कैम्ब्रिज पीपल आस्क दिस क्वेश्चन इज कि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, राइट, sometimes they're gonna ask something about isolated theory, such as let's suppose they give you a question about 3 levels of leadership and nothing else. ठीक है, तो just an isolated theory. Yeah, when they, if they wanna ask about more than one theory, तो फिर किस तरह पूछेंगे, right? So what they, the way they do this is they're gonna ask questions about many different theories, but they're gonna be in the same section. For example, इस पूरे सेक्शन के अंदर अभी जो theories of leadership है, जो अभी section 1 है of leadership, section 1 इसके 4 theories हैं। ये 3 levels of leadership वाला, great man theory वाला,
इसके अलावा बिहेवियरल वे ऑफ लीडरशिप एंड अडेप्टिव लीडरशिप, ये चार थ्योरी है, ठीक है। तो तुम्हारा जो सवाल होंगे जहाँ पे मोर देन वन चीज के ऊपर पूछते हैं, वो हमेशा एक ही सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में पूछेंगे। ये कभी क्रॉस सेक्शन नहीं पूछेंगे, मतलब जहाँ पे ये सेक्शन खत्म हो गया, ये दूसरा रिसर्च है, ये किसी और सेक्शन के अंदर आ रहा है। तो कभी नहीं होगा कि एक क्वेश्चन के अंदर इस सेक्शन के भी बारे में पूछ रहे हो, इस सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। हमेशा वो सिर्फ अगर सवाल पूछेंगे जहाँ पे तुम्हें एवेल्युएट करना होगा, जहाँ पे एवेल्युएशन चाहिए होगी, पेपर 3 का जो एवेल्युएशन था, या कंपैरिजन एज सिमिलरिटी इन डिफरेंस, या डिबेट करना होता है, राइट। इन तीन केसेस के अंदर ये समरी देनी होती है। ये चार केसेस के अंदर तुम्हें मोर देन वन रिसर्च को कोट करने होते हैं। अब मोर देन वन रिसर्च कौन से कोट करोगे, जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है ना, सेक्शन के बाहर नहीं रहोगे। तो इस डिबेट को सॉल्व करने के लिए, राइट, कि एक करिश्मेटिक लीडर चाहिए होता है नहीं चाहिए होता, तुम ग्रेट मैन थ्योरी, बिहेवियर एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप, अडैप्टिव लीडरशिप एंड थ्री लेवल्स ऑफ लीडरशिप के आपस में दरमियान में घूमती रहोगी टू कम अप विद पॉइंट्स ऑफ डिबेट, राइट। एंड दिस गोज फॉर एवरी सिंगल चैप्टर जो आगे आएगा। कोई ऐसा केस नहीं होगा जहाँ पे देर गोना आस्क यू अ क्वेश्चन जहाँ पे दो सेक्शन के थ्योरीज मिक्स होके वो बना रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो मेक श्योर के यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट। एनीवेज, तो यहाँ पे सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन की बाई सिचुएशन नहीं चाहिए होता, करिश्मा चाहिए होता है। तो करिश्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो ग्रेट मैन थ्योरी वाला सबसे पहले जो रिसर्च था यहाँ पे था, कि भाई ये कहता है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, एंड सक्सेसफुल लीडर होने के लिए करिश्मा चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली डू यू अग्री विथ हिम और नॉट अग्री विथ हिम? तो इफ यू यूज दिस बिहेवियर वे ऑफ लीडरशिप, इन्होंने बोला था कि भाई लीडर बनने के लिए आपको दो बिहेवियर पावर शो करना पड़ता है, लोगों का ख्याल रखना, या काम से मतलब काम के बारे में ख्याल रखना, और लोगों को साइड में रखना। तो बेसिकली टॉप टू बिहेवियर्स हैं जो आपको शो करने पड़ेंगे टू बी इफेक्टिव लीडर। तो दिस गोज अगेंस्ट के आपको करिश्मा नहीं चाहिए होता। ऑल यू हैव टू डू इज शो दिस टू बिहेवियर एंड यू आर अ गुड लीडर। अडेप्टिव लीडरशिप के अंदर क्या होता है, अडेप्टिव लीडरशिप के अंदर आपको बेसिकली चीजें चेंज लानी होती है टू बी इफेक्टिव लीडर। सो दिस अगेन डजंट से कि आपको करिज्मेटिक होना पड़ता है, इट जस्ट सेज कि आपको 6 प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं टू बी एन इफेक्टिव लीडर। तो अभी मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए दैट गोस अगेंस्ट इट, ठीक है। यू कैन आर्ग्यू के भाई स्कूलर की लीडरशिप के अंदर जो पब्लिक लीडरशिप होता है, जब आप लोगों से खिताब कर रहे होते हो, तो वहां पे कुछ सॉर्ट ऑफ करिश्मा चाहिए होता है, राइट। सो with regards to school three pieces of leadership, right, public setup के लिए you might need charisma to be a successful leader. So that is one point that is supporting the charisma aspect. स्कूलर की लीडरशिप के अंदर तुम एक अगेंस्ट वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो, दैट स्कूलर सेज इन द एंड के टू बी एन इफेक्टिव लीडर यू नीड टू बी गुड इन पर्सनल लीडरशिप, वरना बाकी सब सर्कल खराब होगा आपका लीडरशिप का, ये लेवल खराब होगा लीडरशिप का, कि पर्सनल अगर सही नहीं है, प्राइवेट एंड पब्लिक भी बिगड़ जाएंगे। सो दैट गिव्स योर पॉइंट कि नहीं, करिश्मा की जरूरत नहीं है, पर्सनल लीडरशिप सब सही करना है। सो दैट इज गोइंग अगेंस्ट द करिश्मा एस्पेक्ट। नंबर 2, जो सपोर्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हो, ये कि अडेप्टिव लीडरशिप के बारे में भले मैंने कहा था कि 6 प्रिंसिपल्स में अप्लाई फॉलो करने, बट एज यू कैन स्टिल आर्ग्यू कि जो 6 के 6 चेंजेस लाने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत करिश्मा चाहिए होता है टू मोटिवेट पीपल फॉर देम टू चेंज। सो भले हम 6 के 6 प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे अडेप्टिव लीडरशिप के अंदर, बट टू मेक अदर पीपल फॉलो दिस 6 प्रिंसिपल्स यू मे नीड टू बी करिज्मेटिक। सो इस सेंस में यू मे नीड करिश्मा टू बी अ सक्सेसफुल लीडर। So that's 2 points supporting it, 2 points not supporting it. So what I did was I used research within this particular section. सारे research को मैंने use किए within this section to formulate my answers जो support करते हैं या नहीं support करते हैं। And that's what you would be expected of in CIE, कि तुम्हें एक सेक्शन के अंदर सारे रिसर्चेस के याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि एक सेक्शन कच्चा पक्का याद करो, एक सेक्शन पक्का याद करना पड़ेगा। डोंट डू दिस के 3 रिसर्चेस आ गई, एक एक खाली छोड़ दिया, नहीं, सारे रिसर्चेस सही तरीके से आने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू द डिबेट समरी कंपैरिजन इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन। तो
यहाँ तक कोई मसला? Alright, ठीक है. Now we come on to the second section of leadership. ठीक है ना? That is a type of leadership. Yes, leadership style वगैरह. एक मिनट, क्वेश्चन है मेरे पास. I have not done this before. Was not. कौन सा aspect? Which aspect? Which aspect? Which aspect? Like you can use voice chat to like voice out your concerns as well. अगर typing में easily communicate नहीं होता, because some students do have that thing. So like कौन सा aspect? अभी जो theories पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये organizational psychology, so with regards to entire organizational psychology या जो अभी हमने question के बारे में बात की थी. Theories, ठीक है. ये बताओ कि like do you like तुम्हारा जो option है to opt for psychology, वो कौन से दो options हैं जो तुम्हें appear होना है for A2, which two particular areas? Abnormal psychology, organized psychology, कौन सा वाला है? Health psychology, which one? Like you like तुम्हारा A2 के अंदर ना like there are choices कि तुम्हें कौन सा specialization area पढ़ना है. So you're supposed to pick two areas. Abnormal psychology, we're doing it उससे पहले वाले क्लास में, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, ठीक है ना, that we're doing it this क्लास में. इसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी, जो जब एबनॉर्मल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों बैच कवर हो जाएंगे तो Sir, या she's my class fellow and she is doing organization, health and organization. सो हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन. Yeah. ठीक है. और तो ये बताओ कि कैन यू टेल मी दैट अभी जो थ्री पीस ऑफ लीडरशिप हमने किया था, राइट, वो मसला कर रहा है एज एन लाइक व्हाट द स्कूलर्स है, मुझे समझ भी नहीं आ रही थ्री पीस ऑफ लीडरशिप क्या होता है, या अब जो डिबेट वाला क्वेश्चन कर रहा था ये वाला, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आई सॉ यू लॉग इन थ्री पीस ऑफ लीडरशिप के बिल्कुल बीच में कि तुम्हारा नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया था, या फैक्ट्री, हाँ नहीं सॉरी, फैक्ट्री वर्कर्स के क्वेश्चन के बीच में तुम आए थे. तो उसके बाद ये वाला जो पूरा सीन है, लाइक द इंटरसेक्शन, इंट्रासेक्शन, बस. और एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, व्हाट वी कैन डू, ठीक है ना, इससे जो पहले वाला रीच है, ये जिससे पहले जो सब कुछ हुआ है, ठीक है ना, इसके पास रिकॉर्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं, राइट, ठीक है, एंड दे आर रिकॉर्डेड फॉर रीजन कि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए पड़ा होगा, मसला नहीं है. अगर फिर भी समझ में नहीं आता रिकॉर्डिंग पे देखने के बाद, आई कैन एक्सप्लेन टू यू सेपरेटली, ठीक है, आई कैन डू दैट. अच्छा, एंड इट्स अ गुड थिंग यू टोल्ड मी कि यू जस्ट स्टार्टेड द स्लिप्स, ठीक है, तो आई नो व्हाट फेज टू टेक यू फ्रॉम. तो गुड न्यूज फॉर यू इज दैट अब ये वाला जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू सेक्शन, ठीक है, इट्स अ न्यू सेक्शन. सो ये समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसका ना ईमान ने भी नहीं पढ़ा, तुमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो लाइक बोथ ऑफ यू आर ऑन सेम लेवल. जिससे पुराना मटेरियल है लीडरशिप का, ठीक है ना, वो बस में स्टार्ट हुआ है और एक मोटिवेशन का चैप्टर है, ठीक है ना. अगर नहीं समझ में आता, देन ऑब्वियसली आई विल हैव टू एक्सप्लेन टू यू सेपरेटली, ठीक है. Sir, I wanted to ask something. या
Actually, we're gonna have our mocks, so I wanted to ask कि अगर हम अभी mocks नहीं देते तो is it okay because we don't know a thing और school वाले midterms के through हमारी grades भेजेंगे तो should we give mocks or not because we don't know anything yet. हम अभी prepare कर रहे हैं academy से इस वाली से. मॉक्स कब है? सर ये भी 18 जनवरी से. Like they're saying midterms है लेकिन grades भेजेंगे वो. ग्रेड्स तो मार्च में भेजना है, राइट? या फेब में Yeah, भेजना है? but I don't know why they're saying that because अभी हमारी तैयारी नहीं है. जो रमला है इंदुरे है, they're both my class fellows और हम रमला की थोड़ी बहुत तैयारी पर हमारी बिल्कुल भी नहीं है. तो I wanted to ask, is it okay कि अगर हम mid terms ना दें और Do you have that option? हम I don't know because we don't know anything अभी. तो Will your school allow you to भाई चलो मिड टर्म ना दो? Is it possible? Yeah, what? Here you maybe go. we won't because I guess we won't because we don't know anything and I think in the end CIE's papers matter, I think. Alright, तुम्हारा स्कूल कब, when you talk to your teacher next? बात कब करोगे उनसे? We're gonna go to school on 18 January, but we haven't talked to our teacher yet. Like she uses WhatsApp. Yeah. Alright, so यहाँ पे लिखा है कि compulsory नहीं है mid term. What you can do, you can clarify the status of mid term के भाई ये किस लिहाज से कार्ड होगा. It will exactly inform you the percentage importance of mid term. ठीक है? Okay, sir. अगर काउंट नहीं होता एज इनके भाई कहते हैं टीचर भाई ऐसे ही हो, ऐसे ही बच्चों प्रिपेयर करने के लिए सब फॉर्मेलिटी, तो फिर दे दो. क्यों दे दो? भले कुछ नहीं है, इसलिए दो सो यू कैन गेट द पेपर फॉर्मेट फेमिलियर. इसलिए आपसे दे दो. ठीक है? अगर बुरा भी जाता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर कहते Okay, हैं sir. प्रेडिक्टेड ग्रेड की तरह अकाउंट होता है, फिर आई वुड से कि यार रिजर्वेशंस अभी नहीं. अच्छा ये बताओ कि व्हेन डिड यू गाइस स्टार्ट कवरिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस? Like now I have three kids from the same school who have problem with organization cycle. कब किया था शुरू ये slip or का? Sir, actually, our teachers left. We had two psychology teachers who left the school, and due to that, we couldn't study and we joined the academy instead. So, like, I guess I don't even remember when we were like studying because I didn't go to school then, तो फिर as our psychology teachers left. why they doing exams when they have no teacher? I don't get this. Anyways, Yeah, they used to leave school due to some personal reasons, and we had to cope up with that instead. अच्छा, like do you have a replacement in the school? अभी कम से कम वो तो होगा ना? या Yeah, replacement है but जो new teacher थी उनको बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता था and everyone had to struggle with that. तो इसलिए we are really confused. Even I alright, was confused when you were like teaching us the question. what? Alright, तो The देखो, like design you study one. you guys have leverage in the case के you have majority opinion on your side कि भाई ये टीचर का जाती है मैं ऐसा, ठीक है ना? एंड अगर इस तरीके से तुमने मिड टर्म के हमारे ग्रेड भेज दे तो ऑब्वियसली मसला होगा. एंड there is no denying that तुम लोग के साथ जाती होगी, तो you have that thing going for you. And obviously बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे तो, and the teachers knew, ठीक है? So all of this things favors you. So like even if the teacher says कि नहीं mid term count हो गए, you need to tell her कि नहीं करो. Like give you guys another shot, at Yeah. least 1 month. ठीक है? Like you guys don't have to send grades in January. ठीक है? Like Okay. you need to tell that to your teacher अगर वो कहती है कि नहीं I need to send grades now. Uh, alright. अच्छा ये बताओ, क्योंकि now it's like I'm teaching the entire class, तो with regards to organized psychology, तुम लोग कंटेंट अपनी जगह है, वो जो ये हम पढ़ रहे हैं अपनी जगह, ठीक है? उसके अलावा ये बताओ कि मेन इशू तुम्हारा अभी जितने क्वेश्चंस सॉल्व करने के तरीके डिस्कस किए थे, जो इवैल्यूएशन है एंड द समरी, उसमें कोई मसला है? No, sir. डिजाइन एक्सपेरिमेंट में मसला है? No, like you explain it and it's clear then. अच्छा, मोटिवेशन वाले चैप्टर के कंटेंट में मसला है? Not me. I don't have an issue there. और क्या कहते हैं,
सही है। सो अच्छा, मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में ना सिलेबस का फ्रेमवर्क आई गेस नहीं बना, क्योंकि स्लाइड में और बुक में अलग फील आती होगी, तो you might not be able to organize things in your head जिस तरह बुक में organize है, यही होगा। You don't know where one section is ending, so yeah। Yes, sir. all right, all right, all right, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो तुम्हारा जो और the entire thing is, मैं मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, so you guys get this clear। अगर अपने सामने बुक रखनी है, like जो जो रसल वाली है, it would be a good opportunity to do that। so like you guys have your book in front of you, या वो है तुम्हारे पास ब्लैक वाली? Yes, sir. We have. ठीक है। All right, so like let's like or के organizing the section में जाओ, like motivation वाला chapter open करो, then I'm gonna tell you how these things are organized। so what you have motivation chapter 1 के अंदर, ठीक है ना? it has 3 sections। ठीक है, वो section का क्या होगा, वो like bold heading के अंदर दिया होता है, like it's a bold heading, you cannot miss this। तो पहले section का नाम है need theories। that's the name of section number 1। ये नाम है need theories of motivation, ऐसे कुछ पूरा नाम बड़ा बड़ा बता रहा होगा बुक में। you guys find it? Durushavar, like do you like have your book out? ठीक है। Alright, so organizational psychology के chapter के अंदर when you come on to motivation, right? So you're gonna find a heading जिसका need theories के नाम से आ रहा होगा। ठीक है। So that's need theories of motivation। तो उसके अंदर that's gonna be your section। So the entire section is gonna be known as need theories। तो इसके अंदर तीन तीन चीजें आ रही हैं। एक तो Maslow आ रहा है, ठीक है ना? एक ERG by Alderfer आ रहा है, Alderfer, and दूसरा आ रहा है need for achievement by नाम दीजिए उसका, मोरे नाम पे शायद। तो ये तीन है, राइट? सो एक सेक्शन के हैं तीन theories हैं। So this is gonna be the name of the section, ठीक है ना? And this is gonna be the content या research is present in the section। So basically what I'm telling is कि मोटिवेशन के तीन सेक्शन है। एक सेक्शन ये, दो सेक्शन और हैं इसी तरह। दूसरा सेक्शन का जो नाम है दैट्स गोना बी ए, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव, समथिंग लाइक कॉग्निटिव theories of motivation, ऐसे कुछ करके आ रहा होगा। Let me just reconfirm। या cognitive theories के नाम से आ रहा हो, cognitive theories के नंबर 1 पहला जो है like the lock and rhythm के goal setting है, that's goal setting, right? Number 2 is क्या कहते हैं, the room की जो VIE theory, and तीसरा जो है is the expectancy। That's the third section, and एक और आखिरी section है, ठीक है ना, जिसका नाम है motivators at work। सर कॉग्निटिव में थर्ड इक्विटी थ्योरी नहीं है? Oh yeah, yeah, sorry। दिमाग में equity तो यहाँ वो लिखिए, equity motivation work। और एक्सपेक्टेंसी और इक्विटी दो है ना, रूम नहीं है इसमें रूम की कॉग्निटिव में। sorry मैं कभी कभार रूम बोल देता हूँ, वो है यार। तो वह बंदे का नाम भी बताना चाहिए किसने किया, तो लाइक ये एक्सपेक्टेंसी है, ये इक्विटी है, मोटिवेशन वर्क। पहला जो है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, दैट्स वन। नंबर 2 जो है तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम, एंड थर्ड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। ठीक है, सो लाइक दैट्स योर एंटायर मोटिवेशन चैप्टर।
इसी तरह लीडरशिप है कभी तो देखो ऑन एवरेज, बल्कि ऑन एवरेज 100% जो भी यहाँ पे चैप्टर होगा, लीडरशिप, मोटिवेशन, एक्स वाई जी, उसके हमेशा 3 सेक्शन होंगे, राइट। अब उस सेक्शन के नाम अलग होंगे क्योंकि चैप्टर अलग है, तो उसका कंटेंट अलग है, नाम अलग है, बट एवरी सिंगल चैप्टर विल हैव 3 सेक्शंस। हर सेक्शन के अंदर कितने रिसर्चेज हैं? 3। ऑन एवरेज 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 4, लेकिन हर किसी के 3 रिसर्चेज होते हैं। तो एक सेक्शन के 3 रिसर्चेज हैं, इस सेक्शन के 3 रिसर्च, इस सेक्शन के 3 रिसर्चेज हैं। So on average, you're gonna have like 9 research per chapter, 3 section and 9 researches per chapter. ठीक है, अच्छा। So once the syllabus map is complete in your mind, अब सीन क्या होता है, ठीक है। तो CIE क्या क्या करेगा, क्या CIE will not never do certain things। उनका पेपर किसी किसी तरीके का आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CIE जो तुम्हारा जो सवाल पूछेगा, अगर एक से ज्यादा रिसर्चेस चाहिए होंगे, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन के अंदर रह के पूछेगा। दे माइट आस्क अ क्वेश्चन जिसके जवाब यहाँ से आएगा, जवाब यहाँ से आएगा, जवाब यहाँ से आएगा। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा जहाँ पे लाइक इज गोना बी क्रॉस सेक्शन के आधा जवाब यहाँ से आ रहा है, आधा जवाब यहाँ से आ रहा है, कभी ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस लिहाज से इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हें सेक्शन के नाम पता होना चाहिए एंड सेक्शन के अंदर कौन से रिसर्चेस है पता होना चाहिए। क्यों? लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाई इज दिस नेसेसरी। क्योंकि if you go to any past paper, right, जो let's go to organizational psychology. I hope this kind of leadership का question हो। Yeah, there you go. All right. Discuss what psychologists have discovered about traditional and modern theories of leadership, right? Theories of leadership। पूरे जब तुम लीडरशिप के सेक्शन नंबर 1 में जाओगे, राइट, सेक्शन 1 ऑफ लीडरशिप में, तो क्या कहता है या सेक्शन 1 में जाओगी तो पूरे सेक्शन का नाम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है। अगर तुम्हें सेक्शन का नाम नहीं पता होगा ना, तो पता भी नहीं होगा इसके अंदर कौन से वो आ रहे हैं थ्योरीज। सो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्क्राइब व्हाट साइकोलॉजी डिस्कवर्ड अबाउट, ये सेक्शन का नाम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पूछना होता है इन्होंने इन तीनों चीजों के बारे में, तो दे वुड आस्क डिस्क्राइब व्हाट साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अबाउट नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, राइट। सेक्शन का नाम आ गया, नाउ यू आर सपोज फिगर आउट यस इस सेक्शन में कौन से रिसर्चेस हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी श्योर कि तुम्हें सेक्शन के लिहाज से सारे रिसर्चेस याद हो। नंबर 2, you what you're gonna do is you're supposed to get used to how to compare, yeah, how to analyze researches within a particular section। कि फॉर एग्जांपल डिबेट के अंदर इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान आते हैं, हर थ्योरी के प्रोज एंड कॉन्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वन थ्योरी विद अनदर। अगेन इट्स गोना बी इनसाइड द सेक्शन, नेवर गोना बी आउटसाइड सेक्शन का आधा सवाल यहाँ से आ रहा है, आधा सवाल यहाँ से आ रहा है, एंड दैट्स हाउ सिलेबस इज ऑर्गेनाइज्ड। इसी तरीके से सवाल पूछेंगे। सो व्हेन यू डू मेक नोट्स फॉर सेक्शन के नाम, उसके अंदर कितने कौन से रिसर्चेस हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सही लग रहा है 5 चैप्टर होंगे ना, 5 into 9 45 रिसर्चेस कम से कम होंगे तुम्हारे पास टू प्ले विद, एंड you're gonna mix them up। So that's a huge ask, but इस तरह नोट ऑर्गेनाइज कर लेना। uh, yeah, so like more leadership के लिए if you were to do the same thing, ठीक है। तो लीडरशिप के अंदर अभी हमने इतना किया, लीडरशिप, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 1 is theories of leadership, theories of leadership, right। theories of leadership के अंदर जो ग्रेट मैन थ्योरी है, ठीक है ना, यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी लिखते हैं, तो मैं दोनों नाम लिखता हूँ, ग्रेट मैन और एक यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी। उसके बाद बिहेवियर वाली, बिहेवियरल, उसके बाद 3 लेवल्स वाली जो अभी हमने किया था, उसके बाद वो थी यार क्या कहते हैं, अडैप्टिव। देयर 4 थ्योरीज हियर, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 3 देयर 4। तो अगेन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना। इफ यू डोंट नो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, यू आर डन फॉर।
So make sure you organize your researches according to the names of the section they have provided in your course. अब जो second जो थी अभी हम करेंगे, right? उसका भी एक particular नाम है, ठीक है ना? उसके अंदर भी particular researches है. That is styles of leadership. Yeah, leadership style and effectiveness. तो basically इसके अंदर जो भी 3 researches आ रहेंगे, 4 researches आ रहेंगे, they're gonna be bunched together. So that's how you're supposed to take, you organize your content, your reading material, your study material in that regard. So yeah, Chris, what? No, sir. Does that make things easy? Yes. All right, so we're done with this. ठीक है. Now we're gonna start with this. And इसके अंदर सबसे पहले theory जो आ रही है, ठीक है ना, that is the contingency theory. Contingency theory by Fiedler ने दिया था, I guess नाम क्या है? हाँ, Fiedler. Yeah. All right. So contingency theory, what is it? What is it about? देखो यहाँ पे we're gonna talk about styles of leadership. तो यहाँ पे even though the name is contingency theory, यहाँ पे कोई ना कोई स्टाइल निकलेगा. So Fiedler कहता है कि ठीक है ना, हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप चाहिए होता है. हर इदारे के लिए, एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर स्टाइल कामयाब नहीं होता, अलग अलग स्टाइल चाहिए होते हैं. क्यों? क्योंकि एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स. As I said again, if you देखो तुम्हारे साथ तुम लोग का मसला क्या होता है कि you are students, right? तो you have never worked internship के अलावा, तो you don't know the organizational experience. Abnormal psychology में सबको पता है, थोड़ा बहुत मसले होते हैं सबके साथ, हेल्थ साइकोलॉजी में भी होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव तुम लोग के पास नहीं है. वो कैसे लाए? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं सोच सकते हैं, थिंक ऑफ योर फैमिली. फैमिली इज एन ऑर्गेनाइजेशन. So think of it this way: every single family, organization की तरह, every single family requires different leadership. ठीक है, हर फैमिली के अंदर क्या होता है, amount of power the leader has and amount of control the leader has differs. तो इस तरीके से हर फैमिली के लिए अलग अलग लीडर चाहिए होगा, ठीक है. amount of power and control differs in that regard. तो that's the idea. तो फील्डर फिर क्या करता है, टू फाइंड आउट कि हर सिचुएशन के लिए कौन सा डिफरेंट लीडर चाहिए होता है. तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल निकालने के लिए, डिफरेंट लीडरशिप टाइप मालूम करने के लिए इसने एक स्केल बनाया जिसका नाम है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर. लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर से पता चल जाएगा कि आप कौन से टाइप ऑफ लीडर हो, ठीक है. और अगर आप टाइप ए वाले लीडर हो, आप किसी और जगह काम आओगे. अगर आप टाइप बी वाले लीडर हो, आप किसी और जगह काम आओगे, ठीक है. दैट्स द आइडिया. तो मालूम कैसे करेंगे आप कौन से टाइप वाले लीडर हो? ही इंट्रोड्यूस द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्किल. लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, ठीक है ना, बेसिकली करते क्या है कि ये जो है द स्केल, ठीक है, इसके अंदर 16 क्वेश्चंस हैं या 16 वर्ड्स हैं. थर्ड वर्ड के सामने लाइक उसका ऑपोजिट लिखा होता है, ठीक है. जैसे लाइक टेंस के सामने रिलैक्स्ड है, एंड आपको 0 से लेके सॉरी 1 से लेके 8 तक सर्कल करना होता है, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट. दी क्या कहते हैं, द पॉजिटिव word has a higher rating, ठीक है ना, and the negative word has a lower rating, ठीक है. तो जितना ज्यादा स्कोर के अंदर पॉजिटिव स्कोर, ज्यादा स्कोर होगा, उतना मतलब है कि आप उतने ज्यादा पॉजिटिव हो. जितने आपके कम स्कोर आ रहा होगा, द लोअर स्कोर आ रहा होगा, इसका मतलब आप उस तरीके से एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक रखते हो. भारत. तो करना क्या होता है, लीस्ट प्रिफर कोवर्कर. लीस्ट प्रिफर कोवर्कर्स के हम देते इस तरह कि भाई कोवर्कर्स को बुलाते हैं या बंदों को बुलाते हैं और हम बोलते हैं भाई ये स्किल पकड़ो और दिमाग में वो इंसान लाओ जिसके साथ तुम काम करना पसंद नहीं करते. We tell them exactly this. When you fill out this questionnaire, think of a person that you least like to work with. भले कोई भी हो. फिर वो बंदा जो है वो दिमाग में उस बंदे को लाता है, और उस बंदे को ला के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रेटिंग देता है, ठीक है ना. क्या वो अनप्लेजेंट है या लॉयल है, या हेल्दी या अनहेल्दी, फ्रेंडली अनहेल्दी unfriendly. Bharat. So the person keeps that person who he doesn't like in mind and fills this out. कोई ना कोई स्कोर नीचे निकल जाता है. तो होता क्या है कि एट द एंड कोई ना कोई स्कोर निकल के आएगा. बट दैट स्कोर, ठीक है ना, इवन दो उस बंदे ने उस
least preferred co-worker को दिमाग में रख के क्या था, but that score shows us something else about the person who filled it. तो ये असल में टेस्ट उस पर्सन के बारे में होता है जो उसने फिल किया होता है। क्या मतलब, देखो अगर आपको किसी से काम करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसको ज्यादा रेटिंग दे रहे हो लिहाज रखने के लिए या इंसानियत के तौर पे, एक्स वाई कोई भी है, तो इसका ये मतलब है कि आप जो हो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप पर्सनालिटी रखते हो। और अगर आपने उस इंसान को क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, यस इट इज। और अगर आपने किसी इंसान को दिमाग में रखा जिससे आप बात पसंद नहीं करते और उसको हार्श रेटिंग दी, इसका ये मतलब है कि आप किसी और टाइप के इंसान हो। सो बेसिकली अगर आप लीनियंट रेटिंग देते हो अपने कोवर्कर को, यू आर गोना बी नोन एज अ लीडर हु हैज ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेशन। एंड इफ यू गिव हार्श रेटिंग टू द कोवर्कर दैट यू डोंट लाइक, इसका ये मतलब है यू आर गोना बी द लीडर जिसका टास्क ओरिएंटेशन है। सो इससे दो टाइप ऑफ लीडरशिप पता चलता है, आदर यू आर गोना बी ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेशन, अगर आप अपने लीस्ट प्रेफर कोवर्कर को लीनियंट रेटिंग दोगे, अगर हार्श दे दो तो टास्क ओरिएंटेशन वाले लीडरशिप स्टाइल रखते हो। सो दीज आर द टू नेम्स ऑफ द स्टाइल एंड दिस इज हाउ वी फाइंड आउट लीस्ट प्रेफर कोवर्कर। ठीक है, तो सो दैट्स हाउ फीडर सर्च यू कैन फाइंड आउट कि बंदे का लीडरशिप स्टाइल क्या है। अब इसके बाद फीडर कहता है कि अब डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन काम करेगा, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जहाँ पे टास्क ओरिएंटेशन काम करेगा, क्योंकि हर किसी के पावर और कंट्रोल अलग है। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल जेल के अंदर यू नीड टू बी अ वार्डन जहाँ पे क्रिमिनल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टास्क ओरिएंटेशन चाहिए होगा। ठीक है, वहाँ पे यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट पावर एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल। तो जहाँ पे आपको ज्यादा पावर चाहिए, जहाँ पे आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए, वहाँ पे हार्श, वहाँ पे टास्क ओरिएंटेशन चलेगा। लेट्स सपोज अगर आप हाई स्कूल प्रिंसिपल हो, हाई स्कूल प्रिंसिपल के अंदर पावर और कंट्रोल चाहिए होता है लेकिन ज्यादा चाहिए नहीं होता। तो लाइक यहाँ पे कहीं बीच का रीजन लगा जो ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन रखता हो और कहीं ना कहीं टास्क ओरिएंटेशन के लिए। और आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पावर और कंट्रोल नहीं चाहिए, यू नीड टू बी लीनियंट। सो यू नीड टू बी ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेड, भारत। सो दैट्स व्हाट फील्डर सेड कि दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो वन सेकेंड, in summary, Fielder कहता है कि different organizations that need different leaders, and the one way to find out is different styles आपके कौन से हैं, is using the least preferred coworker skill, जहाँ पे दो टाइप लीडरशिप निकल के आते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, टास्क ओरिएंटेशन। हार्श रेटिंग तो टास्क होगा, लीनियर रेटिंग तो ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होगा। और हर लीडरशिप स्टाइल के अपने अपने यूजेस हैं, अपनी अपनी जगह। ठीक है, तो दैट्स हिज एंटायर थ्योरी इन समरी, ये सीआईए की समरी, ठीक है ना। तो भारत, if you were to evaluate feeder search things theory कि इसको evaluation करेंगे, right, तो but do you think this it is applicable in real life? It is applicable in real life क्योंकि पहली बात इसका questionnaire है that you can distribute to people and use it in your own organization. So feeder theory is applicable, we can use it in real life, you can use it to find out person's leadership style. Secondly, डू यू थिंक इट इज कल्चर बायस? वेल, फीलर ने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से किया था, तो हो सकता है ये ह्यूमन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट और टास्क ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर के अंदर से है। क्यों? क्योंकि हर कल्चर के अंदर बंदा अलग तरीके से सोचता है। अगर तुम यहाँ पे शायद ये स्किल दोगे तो लोग फिर भी लिहाज करके लीनियर रेटिंग देंगे, भले वो टास्क ओरिएंटेड वाला बंदा हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कल्चर ऐसा, तो शायद वो काम से काम मतलब रखने वाला ही बंदा क्यों ना हो, नहीं वो फिर भी कोई ना कोई कंपेरेटिवली टू वेस्टर्न पीपल लीनियर रेटिंग ही देगा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पीपल जो टास्क ओरिएंटेड है। तो कल्चर टू कल्चर रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, इज इट गना बी वैलिड? नहीं, मसला आ सकती है क्योंकि डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट है, तो नॉट एवरीवन मे आंसर इट ऑनेस्टली। क्या पता बंदा जो है तफरी करने के लिए गलत गलत बढ़ रहा हो नॉन सीरियस एटीट्यूड से, सो रिजल्ट्स थोड़े बहुत इनवैलिड आ सकते हैं। इज इट स्टैंडर्डाइज? यस, क्योंकि everyone will get the same questionnaire to rate upon, so it is going to be standardized, hence replicable. uh all right, is it individual या situational? मतलब यहाँ पे फील्डर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है?
कि is the individual responsible or the situational? Well, यहाँ पे